وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعظم نے عوام کے سخت رد عمل کے بعد بجلی کے بھاری بلوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس نے ہنگامی اجلاس آج طلب کیا ہے، جس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجلاس میں صارفین کو بجلی کے بلوں سے متعلق زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مشاورت کی جائے گی۔ بجلی کے بلوں میں اضافے پر ملک بھر میں عوام سراپا احتجاج ہے۔ کراچی، راولپنڈی، ملتان، گوجرانوالہ اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بجلی کے اضافی بل عوام کی برداشت سے باہر ہو گئے۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی پوری کریں یا بجلی کے بھاری بل جمع کرائے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے اور ٹیکس بھی ختم کیا جائے۔ دوسری جانب تاجروں نے بھی بجلی کے بھاری بلز اور ٹیکسوں کی بھرمار کے خلاف شٹر ڈاؤن احتجاج کیا۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی پریشان ہو گئی اور ماہانہ 1.25 کروڑ روپے کی بچت کا نیا منصوبہ تیار کر لیا۔ کراچی کے 106 مرکزی شاہراہوں پر لگی اسٹریٹ لائٹس کا ماہانہ بل لگ بھگ 1 کروڑ 25 لاکھ روپے آتا ہے، جس کی بچت کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اہم شاہراہوں پر سولر اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں 65 ولیج اور نیبرہڈ کونسلوں کی متعدد خالی نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات پر پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جو بغیر وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اے پی کے ضلع پشاور، نوشیرہ، چارسدہ، خیبر مردان، کوہاٹ، بنو، لکی مروت، ضیاء خان، ٹانگ، کیپٹن آباد، ہری پور، مانسیرہ، بٹگرام، طورخرس، سوات، شانگا، مالاکنڈ، دیر اپر، دیر لوئر اور باجوڑ اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی لندن میں بڑوں کی بیٹھک۔ عام انتخابات میں نون لیگ کی جانب سے مصالحانہ کی بجائے جارحانہ انداز اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں نون لیگ انتخابی مہم میں اپنے ساتھ ہونے والی انتقامی کارروائیوں کو ڈاکیومنٹری کی صورت میں سامنے لائے گی۔ انتخابی مہم میں سابقہ چند اہم شخصیات کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز انتخابی مہم میں بڑی اہم شخصیات کے خفیہ آڈیوز اور نواز شریف کے خلاف کی گئی سازش کو بے نقاب کریں گی۔ رانی پور میں پیر کی حویلی میں تشدد سے کم سن بچی فاطمہ کی ہلاکت کیس کے 4 ملزمان کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ پولیس کے مطابق رہا کیے جانے والوں میں ایس ایچ او امیر چاند، ڈاکٹر فتح میمن، ڈاکٹر علی حسن رسان اور کمپاؤنڈر امتیاز شامل ہیں۔ تفتیشی افسر نے دعویٰ کیا کہ چاروں ملزمان کو بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے پر چھوڑا گیا۔ مرکزی ملزم اسد شاہ کی جسمانی ریمانڈ میں گزشتہ روز عدالت نے 3 روز کی توسیع کی تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج میں چوتھا سیلابی ریلا چھوڑ دیا، جس سے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث پاکپتن، قصور بہاول نگر، بہاولپور، لودھرا اور بہاڑی کی دریائے پٹی پر سینکڑوں دیہات پہلے ہی زیر آب ہیں اور فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا اور بلائی پنجاب میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، بلائی پنجاب میں بارش کی توقع ہے۔ بلائی علاقوں میں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی کی گئی۔ اور
और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर राजर बनी ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। एक बयान में राजर बनी ने कहा कि मैं और नायब सदर राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में सरकारी इशारे के अलावा एशिया कप मैचेस भी देखेंगे। राजर बनी का कहना है कि मुझे पाकिस्तान जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं। मेरा पाकिस्तान का दौरा हमेशा यादगार रहा। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम के सख्त रद्द अमल के बाद बिजली के भारी बिलों में इजाफे का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई है। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिलों में इजाफे पर मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिजली के इजाफी बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए। गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिजली के भारी बिल जमा कराए। शहरियों ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए और टैक्स भी खत्म किया जाए। दूसरी जानिब ताजरों ने भी बिजली के भारी बिल्स और टैक्सों की भरमार के खिलाफ शटर डाउन का ऐलान किया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बिजली की निर्खों के हवाले से तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम के सख्त रद्द अमल के बाद बिजली के भारी बिलों में इजाफे का नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास आज तलब किया है, जिसमें वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग देने की हिदायत की गई है। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिलों में इजाफे पर मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बिजली के इजाफी बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए। गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी पूरी करे या बिजली के भारी बिल जमा कराए। शहरियों ने मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए और टैक्स भी खत्म किया जाए। दूसरी जानिब ताजरों ने भी बिजली के भारी बिल्स और टैक्सों की भरमार के खिलाफ शटर डाउन का ऐलान किया है। वहीं दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिलों से बल्दिया उस्मा कराची भी परेशान हो गई है और महाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत का नया मंसूबा तैयार कर लिया। कराची के 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का महाना बिल लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आता है, जिसकी बचत के लिए बल्दिया उस्मा को कराची ने अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब मौशी तज्जियाकारों ने बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा भी बता दिया है। माहिर मौशियात फरक सलीम का कहना है कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस हैं, जिन्हें कम करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगाकर पूरा किया जाए। उसके अलावा मौशी तज्जियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिलों को किस्तवार वसूल करने की तजवीज दी और बताया कि बिलों में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बिजली के भारी भरकम बिलों से बल्दिया उस्मा कराची भी परेशान हो गई और महाना 1.25 करोड़ रुपए की बचत का नया मंसूबा तैयार कर लिया। कराची के 106 मरकजी शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का महाना बिल लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए आता है, जिसकी बचत के लिए बल्दिया उस्मा कराची ने अहम शाहराहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब मौशी तज्जियाकारों ने बिजली के बिलों में फौरी कमी का नुस्खा भी तैयार कर दिया है। माहिर मौशियात फरूक सलीम का कहना है कि बिजली के बिलों में 30% मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस है, जिन्हें कम करके अवाम को फौरी रिलीफ दिया जा सकता है। इस कमी को बराह रास्त टैक्स लगाकर पूरा किया जाए। उसके अलावा मुआशी तज्जियाकार खाकान नजीब ने गर्मी में आए बिलों को किस्तवार वसूल करने की तजवीज दी और बताया कि बिलों में एक हिस्सा 18% GST का है। इसमें कमी के लिए IMF से दोबारा बातचीत की जाए।
खबर शामिल करें हरिपुर से, जहां ऑल ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर मोहम्मद सलीम अवान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साजिद नसीब ने कहा कि बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्स किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने चैम्बर ऑफ ऑफिस में ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए कहा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। हरिपुर आर्ट ट्रेडर फेडरेशन के एहतजाज में शामिल तंजीमों का बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्सेस के निफाज के खिलाफ मोहम्मद सलीम अवान, जनरल सेक्रेटरी जवाद तारिक जंजुआ, जेर सदारत जिला बार की जुमला ट्रेड तंजीमों का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साजिद नसीम, सरायसाला ट्रेड के सदर हसरत अली शाह, नान बाई एसोसिएशन, बार्बर एसोसिएशन व दीगर तंजीमों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी व दीगर अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर आर्ट ट्रेडर फेडरेशन के सदर मोहम्मद सलीम अवान, चैम्बर के सीनियर नायब सदर मोहम्मद साजिद नसीम अवान का कहना था। मैं बात की हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इन लोगों पे जुल्म बंद किया जाए और ये जो गैर जरूरी बिलों में इजाफा किया हुआ है उसको वापस लिया जाए। अगर वापस न किया गया तो हम बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे। आज देख लें जो हालात बने हुए हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं, जिसके पास बाइक है बाइक बेच रहा है, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी बेच रहा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आगे हमने क्या करना है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी हमारे ऊपर कोई जो रहम नहीं होता है, ये लोग हमारे साथ कोई नरमी नहीं करते हैं, तो आगे हमने क्या करना है, इस बात के ऊपर सारी तंजीमों को सोचना चाहिए। हत्ता कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, हो सकता है कि ये सिविल नाफरमानी की तरफ चले जाए लोग। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि वाबड़ा की जानिब से खुद साख्ता इजाफा काबिल कबूल नहीं। अवाम पहले ही भूख और अफलास व महंगाई की चक्की में पिस रही है। रही से कसर वाबड़ा ने ज़ालिमाना टैक्स लगाकर निकाल दी है। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राशिद महमूद, कोहिनूर। खबर शामिल करें मालाकंड से, जहां बिजली सार्फिन ने बिलों में नारवा इजाफे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा करके अवाम का खून चूस रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली बिलों में नारवा इजाफे को वापस लिया जाए, वरना किसी सूरत बिल अदा नहीं करेंगे। मुजाहिरीन ने चौक के मकाम पर जीटी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। आपको अपडेट करते चले मालाकंड के हवाले से, तो जहां बिजली सार्फिन ने बिलों में नारवा इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा करके अवाम का खून चूस रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि बिजली बिलों में नारवा इजाफे को वापस लिया जाए, वरना किसी सूरत बिल अदा नहीं करेंगे। दीगर शहरों की तरह भावलनगर में भी हुकूमत की जानिब से लगाए गए बिलों में ज़ालिमाना टैक्स के हवाले से अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, मजदूर तबका सरापा एहतजाज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त सिटी चौक में मौजूद अंजुमन ताजरान के रहनुमा फजल इलाही से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर सिटी चौक में। यहाँ भी अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और आमशहरी जो है सरापा एहतजाज है। हुकूमत की जानिब से जो बिलों पे ज़ालिमाना टैक्स लगाए गए हैं, इसके हवाले से जो आमशहरी जो है ताजरान जो है इस वक्त एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे जो अंजुमन ताजरान के रहनुमा। जी सब बताइएगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मौजूदा हुकूमत को? पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह बहावल नगर के लोग भी बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे से शदीद परेशान हैं। आज ये एहतजाजी मुजाहरा जो किया जा रहा है सिटी चौक में बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के ख़िलाफ़, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग, अंजुमन ताजरान, इसमें वकला, तलबा, मजदूर, किसान, तमाम तबका हाय फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। और हम सब का एक ही मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे को फिल फौर वापस ले
और आगे ही अवाम महंगाई के सताए हुए हैं, आगे ही हम बिजली जो है महंगाई से परेशान है। हम बिजली का बिल अदा करने की सकत नहीं रखते। इतना बेतहाशा इजाफा, ये जो मामूल बन चुका है, बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल के में इजाफा, ये अवाम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। अवाम के अंदर अभी रगों में इतना खून नहीं है, जितना निचोड़ना था वो निचोड़ लिया गया है। अब हमें माफ़ी दी जाए और ये जो इजाफा किया गया है बिजली के बिलों में, पेट्रोल में, ये फिल फौर वापस लिया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे अंजुमन ताजरान के रहनुमा। इनका कहना था पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है और मजदूर तबका जो है महंगाई के दलदल में पिसा चला जा रहा है। इनका कहना है कि बेरोज़गार जो है इस वक्त बिलों के जो टैक्स जो अजाफी लगाए गए हैं, ये इनके अंदर इतना हौसला नहीं है कि ये बिलों को अजाफा जो बिल ये भर सकें। इनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत से इनका जो टैक्स जो लगाए गए हैं ज़ालिमाना, इससे फिल फौर वापस ले जाए, नहीं तो अगर ये वापस ना लिए गए तो ये एहतजाज मजीद जो है। सदर गोगीरा में महंगाई से सताई हुई अवाम बिजली के बिल लेकर सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिल उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत से बिजली के बिलों में सालिमाना इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियां असगर। सदर गोगेरा के शहरियों का बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि गरीब अवाम इस दौर में अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकते, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम बिजली के बिल कहां से अदा करें। इस मौके पर जमात इस्लामी के सूबाई उम्मीदवार चौधरी राब नवाज का कहना था कि इस गजब की महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। खुदा के लिए ये जुल्म करना बंद करें। लोग अपने घरों का कीमती सामान बेचकर बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं, अब कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अगर ये सिलसिला ना रुक सका तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। अवाम के साथ होने वाले इस जुल्म में जमात इस्लामी अपनी अवाम के साथ खड़ी है। मियां असगर, कोहिनूर न्यूज़, सदर गुगेरा। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बिजली के सालिमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी नजर आतिश कर दिए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड भी बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करते चले उकाड़ा से, जहां जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम बिजली के ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी नजर आतिश कर दिए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड भी बंद करके रखा हुआ है। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिलों की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दी इंतखाबात पर पोलिंग का आगाज हो गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हो गया, जिसमें बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ये पोलिंग KPK के जिला पेशावर, नौशेरा, चारसदा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बनू, लक्की मरवत, DI खान, टांग, एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा, पटग्राम, तोरकर, सवार, शांगला, मालाकट, अपर दीर, लोअर दीर और बाजोड़ अजला में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स अपना हक दही इस्तेमाल करेंगे। 256 पोलिंग स्टेशन में 159 को हसास तरीन जबकि 84 को हसास करार दिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिलों की मुतादिद खाली नशिस्तों पर ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात पर पोलिंग का आगाज हो गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हो गया, जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। KPK के जिला पेशावर, नौशेरा, चारसदा, खैबर, मर्दान, कोहाट, बनू, लकी मरवत, DI खान, टांग, एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा, बटग्राम, तोरकर, सवार, शांगला, मालाकंड, अप्परदीर, लोअरदीर और बाजोड़ अजला में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3,85,835 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की लंदन में बड़ों की बैठक। आम इंतखाबात में नून लीग की जानिब से मुसालिहाना के बजाय जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया गया है। सराय के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग इंतखाबी मुहिम में अपने साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाएगी। इंतखाबी मुहिम में साबका चंद अहम शख्सियात को हदफ तनकीद बनाया जाएगा। पार्टी सराय का कहना है कि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात की खुफिया ऑडियोज और नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश को बेनकाब करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने साथ होने वाली साजिश के पस पर्दा मुहर्रिकात को सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवामी इज्तिमात में मुसालिहाना रवैया अपनाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने दौर के तरक्याती मंसूबों पर बात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मुस्लिम लीग नून की लंदन में बड़ों की बैठक है। आम इंतखाबात में नून लीग की जानिब से मुसालिहाना की बजाय जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग इंतखाबी मुहिम में अपने साथ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में सामने लाएगी। इंतखाबी मुहिम में साबका चंद अहम शख्सियात को हदफ पे तनकीद बनाया जाएगा। पार्टी सराय का कहना है कि मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में बड़ी अहम शख्सियात के खुफिया ऑडियोज और नवाज शरीफ के खिलाफ की गई साजिश को बेनकाब करेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपने साथ होने वाली साजिश के पसे पर्दा महरकात को सामने लाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अवामी इज्तिमात में मुसालिहाना रवैया अपनाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने दौर के तरक्याती मंसूबों पर बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा कि 16 महीने मौज मेला करने वाले और कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाले अवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि बड़े लोग बिजली चोरी करते हैं और बोझ सारा गरीबों पर डाल देते हैं। अगले महीने पेट्रोल और बिजली का बिल आग पर पेट्रोल डालेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इससे ज्यादा अहम और संगीन मसला अगले महीने लोगों के लिए पेट्रोल और बिजली का बिल अदा करना है। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि लोग बगैर किसी लीडर और जमात के सड़कों पर आ गए हैं और सितमगर साबित हो सकता है। 16 महीने मौज मेला करने वाले और कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाले आवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गए हैं। निगरान हुकूमत क्या करेगी? उनका कहना था कि अवाम का नाम ही रियासत है। अवाम सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रही है। बिजली का बिल दुगना हो गया है और अगले महीने शायद ये मसला संगीन हो जाए। अवाम का रद्द-ए-अमल सियासी नहीं कुदरती है, क्योंकि उनके पास वसाइल ही नहीं कि वो आटा खरीदे, बिजली का बिल भी दे, मकान का किराया और बच्चे की फीस भी दे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी खौफ के मारे हटा दिए हैं। फाइलर और नॉन फाइलर में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों को किसी न किसी तरीके से टैक्स देना पड़ रहा है। भूख से मारे लोग रेस्क्यू 15 पर कॉल कर रहे हैं। जितना रुपया गिरेगा वो सारा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। आपको बताते चले इस हवाले से सरबरा अवामी मुस्लिम लीग इस हवाले से शेख रशीद अहमद ने कहा कि 16 महीने मौज मेला करने वाले और कपड़े बेचकर रिलीफ देने वाले आवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में शेख रशीद का कहना था कि बड़े लोग बिजली चोरी करते हैं और बहुत सारा गरीबों के बिलों पर डाल देते हैं। अगले महीने पेट्रोल और बिजली का बिल आग पर पेट्रोल डालेगा। खबर शामिल करें रानीपुर से, जहां पीर की हवेली में तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा की हिलाकत केस के 4 मुल्जिमान को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक रिहा किए जाने वालों में SHO अमीर शांग, डॉक्टर फता मेमन, डॉक्टर अली हसन वसान और कंपाउंडर इम्तियाज शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया कि 4 मुल्जिमान को बेगुनाही के सबूत पेश करने पर छोड़ा गया। 4 मुल्जिमान ने अपनी बेगुनाही के सबूत
DSP عبدل قدوس کلوڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو پیش کیے. انہوں نے کہا کہ چاروں ملزمان تاحال شامل تفتیش ہے لیکن انہیں پولیس تحویل سے رہا کر دیا گیا ہے. پولیس کیس میں نامزد مرکزی ملزم اسد شاہ کی اہلیہ ہنا شاہ کو بھی تاحال گرفتار نہیں کر سکی جبکہ ہنا شاہ کے والد فیاض شاہ بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے. چاروں افراد پر حقائق چھپانے، جرم چھپانے اور فرائض میں غفلت کے الزامات تھے. مرکزی ملزم اسد شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں گزشتہ 3 روز کے لیے توسیع کر دی گئی. کمسن فاطمہ کی موت رانی پور میں پیر کی حویلی میں ہوئی تھی جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ رانی پور میں پیر کی حویلی میں تشدد سے کمسن بچی فاطمہ کی ہلاکت کے 4 ملزمان کو پولیس نے چھوڑ دیا. پولیس کے مطابق رہا کیے جانے والوں میں SHO امیر شام، ڈاکٹر فتح میمن، ڈاکٹر علی حسن وسان اور کمپاؤنڈر امتیاز شامل ہیں. تفتیشی افسر نے دعویٰ کیا کہ چاروں ملزمان کو بے گناہی کے ثبوت پیش کرنے پر چھوڑا گیا. چاروں ملزمان نے اپنی بے گناہی کے ثبوت DSP عبدل قدوس کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو پیش کیے. انہوں نے کہا کہ چاروں ملزمان تاحال شامل تفتیش ہیں لیکن انہیں پولیس تحویل سے رہا کر دیا گیا ہے. پولیس کیس میں نامزد مرکزی ملزم اسد شاہ کی اہلیہ ہنا شاہ کو بھی تاحال گرفتار نہیں کر سکی جبکہ ہنا شاہ کے والد فیاض شاہ بھی پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے. چاروں افراد پر حقائق چھپانے، جرم چھپانے اور فرائض میں غفلت کے الزامات تھے. امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی. امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ پاکستانی ڈاکٹر نے دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کر لیا. پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود منیسوٹا کے میڈیکل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا. محمد مسعود H1B ویزے پر امریکہ آیا تھا. جنوری سے مارچ 2020 میں دہشت گرد تنظیم داعش میں شمولیت اور اس کے لیے اردن جانے کے ارادے کا اظہار کیا تھا. محمد مسعود کو مارچ 2020 میں منی ایپلس ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. گزشتہ سال اگست میں پاکستانی ڈاکٹر نے اعتراف کیا تھا کہ وہ دہشت گرد تنظیم کی معاونت کا ارادہ رکھتا تھا. امریکی FBI کے جوائنٹ ٹیررسٹ ٹاسک فورس نے تحقیقات میں حصہ لیا تھا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی. امریکی میڈیا کے مطابق 31 سالہ پاکستانی ڈاکٹر نے دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کر لیا ہے. پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود منیسوٹا کی میڈیکل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا. محمد مسعود H1B ویزے پر امریکہ آیا تھا. جنوری سے مارچ 2020 میں دہشت گرد تنظیم داعش میں شمولیت اور اس کے لیے اردن جانے کے ارادے کا اظہار کیا تھا. افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے قیوم آباد سے آر کے پچے کے قریب کار الٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. تفصیلات کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. حادثے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے. ریسکیو کے مطابق زخمی شخص کو شناخت 30 سالہ نبیل کے نام سے ہوئی ہے جس کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 20 سالہ امان کے نام سے ہوئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ افسوسناک خبر ہے. کراچی کے علاقے قیوم آباد سے آر کے پچے کے قریب کار الٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. تفصیلات کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی. حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا. ریسکیو کے مطابق زخمی شخص کی شناخت 30 سالہ نبیل کے نام سے ہوئی ہے جس کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 20 سالہ امان کے نام سے ہوئی ہے. اور اب کچھ بات ناظرین سیلابی صورتحال کی. تو بھارت نے دریائے ستلج میں چوتھا سیلابی ریلا چھوڑ دیا ہے جس سے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے. سیلابی ریلوں کے باعث پاکپتن، قصور، بہاول نگر، بہاولپور، لودھنا اور بہاڑی کی دریائی پٹی پر سینکڑوں دیہات پہلے ہی زیر آب ہیں اور فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں. متاثرہ علاقوں کے مکین گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہے. بہاولپور میں پانی کے دباؤ سے ایمپریس برج کا بند ٹوٹ گیا جس سے 6 بستیوں میں پانی داخل ہو گیا اور فصلیں متاثر ہو گئی. ریلا احمد پور شرقیہ کی دریائے بیلٹ کی طرف
बढ़ रहा है। आपको बताते चले इस हवाले से कि भारत ने दरिया सतलुज में चौथा सैलाबी रैला छोड़ दिया, जिससे दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। सैलाबी रैलों के बायस पाकपतन, कसूर, बहावलनगर, बहावलपुर, लोधरा और विहाड़ी की दरियाई पट्टी पर सैकड़ों देहात पहले ही ज़ेर-ए-आब है और फसलें डूबी हुई हैं। मुतासर इलाकों के मकीन घर बार छोड़कर कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। जैकबाबाद की बेगारी कैनाल से निकलने वाली ताजा शाख को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल काश्त ज़ेर-ए-आब आ गई। इतला के बावजूद महकमा इरिगेशन का कोई अमला ताहाल ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आग के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ अमल है। इलाका मकीनों ने बताया कि शगाफ का पानी गाँव मलान सोमर और गाँव नबी बख्श बरोही की तरफ बढ़ने लगा। महकमा इरिगेशन करप्शन के नजर हो गया है। आए रोज मुख्तलिफ नहरों को शगाफ पड़ते हैं, नोटिस दिया जाए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जैकबाबाद की बेगारी कैनाल से निकलने वाली ताजा शाख को 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल काश्त ज़ेर-ए-आब आ गई। इतला के बावजूद महकमा इरिगेशन का कोई अमला ताहाल ना पहुंच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आग के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ अमल है। इलाका मकीनों ने बताया कि शगाफ का पानी गांव मलान सोमर और गांव नबी बख्श बरोही की तरफ बढ़ने लगा। महकमा इरिगेशन करप्शन के नजर हो चुका है। आए रोज मुख्तलिफ नहरों को शगाफ पड़ते रहते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। तो महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब में बारिश की तवक्को है। बलाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश हुई और मुल्क के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदी नौकुंडी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डीपीओ झंग की हिदायत पर सर्कल शोरकोट में मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 9 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौजूद हूँ डीएसपी ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलो कि आरडीएसपी शोरकोट के ऑफिस में स्पेशल तौर पर ताजरान जो है, ताजर की बरादरी यहाँ पे इकट्ठी हुई, जिन्होंने डीएसपी साहब को और स्पेशली एसएचओ और चौकी इंचार्ज को अप्रिशिएट किया है। वहाँ पर उनको फूलों के हार पहनाए हैं और उनको अप्रिशिएट करने का मकसद ये था कि पिछले जो हफ्ता गुजरा है तो 15 दिन के उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे शोरकोट थाना की हदूद में वाक़यात रूनुमा हुए, कत्ल के 3-4 वाक़यात रूनुमा हुए, चोरी और डकैती और राजधानी के वाक़यात हुए, जिसमें काफ़ी सारे मामला थाना और शोरकोट सिटी और चौकी शोरकोट सिटी की जो एक टीम थी वो डीपीओ जंग ने तश्कील दी, जिसमें डीएसपी सर्कल शोरकोट भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने अपनी ज़ेरे क़यादत यहाँ पर काफ़ी सारे मामलात जो है वो हल किए। मेरे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज आपके साथ ताजरान ने यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आपको माला भी पहनाया, फूल भी पहनाया है, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे गुज़श्ता दिनों शोरकोट सर्कल में और ख़ुसूसन शोरकोट सिटी में कुछ कत्ल की वारदातें हुई थी, जिनमें एक हसास हमारा मर्डर का केस था जिसमें मियाँ बीवी कत्ल हुए थे। तो उसमें हमने डीपीओ साहब जंग की हिदायत के मुताबिक उन्होंने जो टीम तश्कील दी थी मेरी निगरानी में, तो हमने दिन रात मेहनत करके उन कातलों को, जो इमरान और उसकी बीवी थी, उसको गिरफ़्तार किया और उनको जुडिशल करवाया। और उसके साथ हमारी जो चोरी और डकैती की शहर में वारदातें हो रही थी वो हमने ट्रेस आउट की हैं और साथ मनशियात के खिलाफ काम कर रहे हैं। 9C के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, 9B के किए जा रहे हैं। जो एक कंपेन लॉन्च हुई है आईजी साहब की तरफ से, तो वो भी डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक उस पर भी हम खातर का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान ने हमारी हौसला अफजाई के लिए आज हमारे दफ्तर आए हैं। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। और आइंदा भी हम इसी अज़म से काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, उनका ये कहने का अपने अज़म के साथ काम करते हैं। मेरे साथ एसएचओ साहब ने, मुझे सर बताइएगा, आज आपको काफ़ी सारे ताजिर बरादरी ने अप्रिशिएट भी किया, आपने दिन रात मेहनत की, कत्ल के मुकदमात और जो डकैती मुकदमा ट्रेस किया आपने, तो आपके पास जो शुक्रिया अदा करने के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शोरकोट के शहरियों को?
جی میں میڈیا نمائندگان اور سول سوسائٹی کے لوگ اور جو مدعی صاحبان ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور انشاءاللہ جو ہماری منشیات کے خلاف کمپین چل رہی ہے یہ اسی جوش کے ساتھ جاری رہے گی، اور مزید شہر میں جو منشیات فروشی ہے اس کا ہم مکمل خاتمہ کریں گے۔ جی بالکل یہی کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے جن کے خلاف پہلے بھی کریک ڈاؤن جاری ہے ان پر مسلسل ایک ہی دن کے اندر 4 FIR 9C اور 9B کے دے دی گئی ہیں، اور نیکسٹ آنے والے دنوں میں بھی اسی کمپین کو جاری رکھا جائے گا، کیونکہ اسپیشلی DPO جنگ کا یہ انیشیٹو ہے اور IG پنجاب کا یہ اسپیشلی طور پر یہ ٹارگٹ دیا گیا جو منشیات فروش ہیں ان کو خبر شامل کریں گے حیدرآباد سے، جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عام آدمی کے لیے سبزی خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ آلو، ٹماٹر، پیاز اور دیگر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے دانش شیخ سے۔ جی دانش، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بالکل، مسلسل مہنگائی کی وجہ سے عوام کی تکلیفوں میں مزید روز بروز اضافہ جاری ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کے لیے سبزی خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آلو، ٹماٹر، پیاز اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہے جو ہے ادھر سبزی خریدنے آئے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ 1 کلو سبزی لے لیتے تھے، 2 کلو لے لیتا تو آدھا کلو بھی مشکل ہو گئی ہے، کوئی غریب کہاں سے لائے گا؟ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ ابھی آپ نے کیا کیا لیا؟ ابھی ہم نے بھنڈی لیے، مرچی لیے، صحیح ہوئے گی جب بھی گزارا ہو سکتا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، مہنگائی تو بہت ہو گئی۔ سبزی اس وقت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی تو لے ہی نہیں سکتا۔ ایک تو مزدوریاں نہیں ہے، کام دھندے نہیں ہیں، اور اوپر سے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ گزارے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو نے شرم آنی چاہیے، اتنی مہنگائی کری ہوئی ہے۔ یہاں پر صرف کرکٹ میچ کی طرح گورنمنٹ جو ہے نا کھیل رہی ہے، بس جو بھی یہاں پہ کھیل کے اور چلا جاتا ہے، اپنے بچوں کو باہر لے کے وہیں سیٹل ہو جاتا ہے، اور پاکستان کا یہ حال کر دیا ان لوگوں نے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، مہنگائیوں کو ختم کیا جائے تاکہ غریب آدمی کو کچھ سہولتیں ملیں۔ باقی شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مسلسل پیٹرول منسوات کی قیمتوں میں اضافے سے سبزی جو ہے سمیت تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہے۔ عام آدمی کے لیے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ جلد سے جلد کوئی ٹھوس اقدامات کرے تاکہ صوبائی وزیر زراعت، صنعت و تجارت SM تنویر کی زیر صدارت 5 گھنٹے کا طویل اجلاس منعقد کیا گیا۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 10 سالہ پلان 2023 سے 2033 کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے محمد ثاقب بٹ۔ صوبائی وزیر زراعت، صنعت و تجارت SM تنویر کی زیر صدارت 5 گھنٹے کا طویل اجلاس منعقد کیا گیا۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس میں زرعی شعبہ کی ترقی کے لیے 10 سالہ پلان 2023 سے 2033 کے لیے سفارشات مرتب کی گئیں، جس میں پلان کے مطابق زراعت اور زرعی تحقیق میں پبلک اور پرائیویٹ سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ موسمی حالات سے مطابقت رکھنے والی فصلوں کی ورائٹیز تیار کی جائیں گی اور موٹر ایگریکلچر مارکیٹنگ سسٹم بنایا جائے گا۔ مزید بیجوں کی منظوری کے نظام کو سٹریم لائن کیا جائے گا۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی اور تحقیق تک کاشتکاروں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر زراعت، صنعت و تجارت SM تنویر کا کہنا تھا کہ زراعت کے ذریعے معاشی مشکلات میں کمی لانے کے پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں۔ ویژن اور پلان کے بغیر سبز انقلاب ممکن نہیں، اس لیے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور سفارشات کی روشنی میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 10 سالہ پلان مرتب کیا جائے گا اور پلان پر عمل درآمد کی مکمل مانیٹرنگ بھی کی جائے گی۔ اس وقت اسٹیک ہولڈر کو ایک چھت تلے جمع کرنے کا مقصد 10 سالہ پلان کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دینا ہے اور سفارشات کی روشنی میں ایسا پلان بنانا ہے جس سے زرعی برآمدات بڑھیں گی اور کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں شریک ترقی پسند کاشتکاروں اور ماہرین زراعت نے زرعی شعبہ کی ترقی کے لیے سود مند تجاویز دی، جس پر سیکرٹری زراعت کا کہنا تھا کہ ایگریکلچر پلان پر عمل درآمد کے لیے 12 ورکنگ گروپس بنانے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور تمام ورکنگ گروپس آئندہ 15 روز کے اندر اپنی سفارشات پیش کریں گے۔ اس موقع پر میجر جنرل نذیر کا کہنا تھا کہ گرین پاکستان انیشیٹو سے معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ اجلاس میں محکمہ زراعت کے سینئر افسران، ماہرین اور کاشتکار تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मॉडल टाउन ए ब्लॉक में शायर आल इमरान सैयद मुजफ्फर नकवी की रहायशगाह से शबी जुलूस का जुलूस बरामद किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। 8 सफरुल मुजफ्फर बसिलसिला शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शायर अल इमरान सैयद मुजफ्फर नकवी, सैयद सज्जाद बुखारी, सैयद मोहम्मद रजा जहदी, सैयद मुंतजर मेहंदी, साजिद बख्तियारी, सैयद फरदीन काजम नकवी, सैयद गलमान हैदर नकवी, सैयद हसनैन अब्बास नकवी, सैयद वाजिद अब्बास नकवी, सैयद वजीउल हसन नकवी की रहायशगाह ए ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में मजलिस अज़ा मुनक्कद की गई। मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा असद अली शाकरी नजफी ने अहले बैत की शान बयान की। इनका कहना था हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला के बाद 34 साल बाक़ैद हयात रहे और इस दौरान आपने शोहदा करबला की याद ताज़ा रखने की हर कोशिश की। पानी पीते वक्त याद करते इमाम हुसैन की प्यास को। हजरत इमाम हुसैन के मसाइब पर गिरिया करते और आंसू बहाते थे। एक रवायत के ज़मन में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मकतूल है कि हजरत इमाम सज्जाद ने तकरीबन 40 साल तक अपने वालिद के लिए गिरिया किया, जबकि सारा दिन रोजा रखते और रातों को नमाज व इबादत में मसरूफ रहते। इफ्तार के वक्त जब आपका खादम खाना और पानी लाकर अर्ज करता कि आएं और खाना खाएं, तो आप फरमाते फरजंद रसूलुल्लाह भूखे मारे गए, फरजंद रसूलुल्लाह प्यासे मारे गए, और यही बात मुसलसल दोहराते रहते और गिरिया करते, हत्ता कि आपके अश्क आपके आबो गजा में गुल मिल जाते थे। आप मुसलसल इसी हालत में थे हत्ता कि दुनिया से रुखसत हो गए। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह वापिस आकर इख्तिताम पजीर। वासा के ज़ेरे एहतमाम दाता नगर सब डिवीजन में फूल यूनियन के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर फूल यूनियन वासा सईद खान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में वासा मुलाजमी ने फूल यूनियन के हक में नारेबाजी की गई। मुलाजमी ने हाथों की जंजीर बनाकर फूल यूनियन से मोहब्बत का इजहार किया। सदर फूल यूनियन सईद खान ने कहा कि वासा मुलाजमीन के हकूक पर काम करके अपने वादों को तकमील तक पहुँचाएंगे। अपग्रेडेशन और अलाउंस हमारी अवलीन तरजीह में शामिल है। इस मौका पर चौधरी सरवर, राना सलीम, मिर्जा नदीम, हबीबुर रहमान, वकास वजीर, इरफान, नोमान और फहद के साथ वासा मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद थे। जब वर्दी वाले ही चोरी की वारदातें करेंगे तो चोरों को गिरफ्तार कौन करेगा? लाहौर कान्हा के इलाके में सर्च ऑपरेशन के बहाने शहरी शाहिद के घर से 2 लाख रुपए चोरी करने वाले डॉल्फिन एहलकार वकार अहमद टीम नंबर 267 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा कि कानून के रखवाले ही चोर निकले हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा। देखें, ये कान्हा का इलाका है, जेडू गांव, जहां पर सीसीपी लाहौर डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से पूरे लाहौर में जो है वो पहले तो सर्च ऑपरेशन किए जा रहे थे ताकि जराइम पेशा अनासर को नकेल डाली जाए। तो वहीं पर जेडू गांव जो कि इलाका थाना कान्हा में आता है, तो वहां पर पुलिस की जानिब से जो है वो गांव में ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसको सर्च ऑपरेशन कहा जाता है। तो उस सर्च ऑपरेशन में जो है वो डॉल्फिन पुलिस के जवान भी मौजूद थे, जो कि वकार नाम का एक पुलिस एहलकार जो कि डॉल्फिन एहलकार था, वो जब शाहिद मुनीर के घर के अंदर दाखिल हुआ है तो वहां पर 2 लाख रुपए पड़े हुए थे। उनकी रकम इसने उठाकर जेब में डाली और बाहर चला गया, जिस पर घर के मालिक ने शोर शराबा किया। तो फौरी तौर पर एएसपी जो है वो कान्हा ने वापसी पर बुलाया और इनको जब चेक किया तो इसकी जेब से पैसे बरामद हो गए और फौरी तौर पर इसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। चौकी इंचार्ज की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और जब मेरी बात हुई थी एसपी डॉल्फिन से, तो एसपी डॉल्फिन का कहना था कि पुलिस एहलकार ने जुर्म किया है, इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है और इसके खिलाफ जो है वो 155C का मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद किया गया है और इसको बाकायदा तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। और इंक्वायरी जो थी जो है डीएसपी हेडक्वार्टर डॉल्फिन के सुपुर्द कर दी गई है। अब देखना यह है कि डॉल्फिन हेडक्वार्टर के जो डीएसपी हैं वो इनको बेगुनाह करते हैं या गुनाहगार करते हैं, लेकिन वक्तन देखा जाए तो जो रकम थी एएसपी की मौजूदगी में जो है वो डॉल्फिन एहलकार की जेब से निकली थी, जिसका बाकायदा मुकदमा दर्ज करके पुलिस एहलकार जो कांस्टेबल था वकार, उसको हवालात में बंद कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ऐसे पुलिस एहलकारों की हमें जरूरत नहीं जो वर्दी पहनकर चोरी की वारदात करते हैं। इसी तरह से अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरियों ने भी इस पर जो है वो बड़ा गमो गुस्सा किया है और कहा है कि अगर वर्दी वाले ही चोरी की वारदात करेंगे तो चोरों को गिरफ्तार कौन करेगा। तो तहाल जो है वो शहरी जो है वो मनीर की जानिब से कहा गया कि मेरे घर में चोरी की वारदात की गई थी, मुझे मुद्दई नहीं बनाया गया,
क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट खुद ही मुद्दई बनी है। 155C का मुकदमा दर्ज किया गया है। 155C के हवाले से मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि कोई भी यूनिफॉर्म वाला अगर गफलत लापरवाही का मुजाहरा करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, तो उसके मुताबिक जो है वो 155C का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाता है। बाकायदा तौर पर जो शहरी था उसका कहना था कि मेरा मुकदमा जो है वो 380 में जो है वो दर्ज करना चाहिए था और मुझे मुद्दई बनाना चाहिए था, क्योंकि मेरे घर से रकम चोरी हुई थी। लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है और कहा गया है कि आइंदा कोई भी सर्च ऑपरेशन करेगा तो पुलिस एहलकार जो है वो, जो इनका इंचार्ज होगा, वो तमाम चीजों का जिम्मेदार होगा। अभी जो है वो SP डॉल्फिन की जानिब से भी पुलिस एहलकार जो था वकार, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। जी ठीक है, 155C के तहत मुकदमा दर्ज करेगा। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे माहौलियात के इंस्पेक्टर मुमताज और अली रजा के खिलाफ मिल मालिकान की तरफ से मुबैना करप्शन की दरखास्त DGPHA को दे दी गई है। मजीद तफसीलात के मुताबिक DGPA का मुबैना मिल मालिकान को कहना था कि दरखास्त ना दो वरना इंस्पेक्टर मिल नहीं चलने देगा। मिल मालिकान ने इल्जाम लगाया है कि इंस्पेक्टर अली रजा हमसे रिश्वत मांगता है। इंस्पेक्टर मुमताज के खिलाफ करोड़ों की करप्शन का इल्जाम लगाया गया है, ताहम अभी तक तहकीकात न हो सकी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए KN न्यूज।